ओके, हरी बोल, स्टार्ट. ऑडियो वीडियो ऑल ओके, वॉइस इज ओके, प्रोफेशनल लगना चाहिए. हरे कृष्ण. इफेक्ट वाला चाहिए ना. हाँ, हरे कृष्ण. माइक डालना जरूरी है, तो नहीं सुना. ओके, सो वी विल वेट. मुझे पानी चाहिए था. आप लोग पानी पिलाने वाले हैं तो मैं थोड़ा पहले से पी लेता हूँ, प्यास न लगे. किधर? अच्छा, राइट साइड क्लॉकवाइज. स्टार्ट. हरि बोल. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा. So प्रभु, can I start with your permission? हरि बोल. आवाज नहीं आया. We are waiting for everyone. First bench माता जी, I will ask question. First bench. Last bench is nice. No? हरे कृष्णा. हेलो, हरे कृष्णा. हरि बोल. ओके प्रभु. जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, जय गोपी जय जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, जय गोपी जय गिरिवरधारी, जय गिरि जय यशोदानंदन, जय ब्रज जनरंजन, जय यशोदानंदन, जय ब्रज जन जय यशोदानंदन, जय ब्रज जनरंजन, जय यशोदानंदन, जय ब्रज जन जय यमुना तीरावनचारी, जय कुंज बिहारी, जय यमुना तीरावनचारी, जय
जय यमुना तीरावनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरावनचारी जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 जय राधा माधव राधे जय राधा जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रमा जय सुदर्शना जय 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 प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा
जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि गीता गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निता गौर हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निता हरि बोल 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 हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि नाम संकीर्तन की जय। Hare Krishna Prabhu. Thank you so much Prabhu. Yes. So welcome all the devotees. Hare Krishna. Pranams to all. So I need blessings from all the senior devotees and my god brother and god sisters to bless me so I can speak the right words in the right mood and with the right understanding and for my own purification. Thank you so much. So today we are going to understand the Srimad Bhagavatam, which was whatever last time Raghunandan Prabhu said, that verse plus one. है ना? 1.2.23. Very good. Very good. So before me starting, let me check my. Okay. So again, please accept my respectful obeisances. You know, starting जब बैठते हैं थोड़ा ऑक्सीजन कम लगता है, पता नहीं क्यों. Anyways, we will start today's session. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. अभी आप लोग बोलो. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manopishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavasya Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatangitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padanam Sahagana Lalita Shri Vishakani Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nikinami Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So first of all, thank you so much. Like we say the MC, no, first we say the host, thank you for hosting the events and thank you for the devotees for coming for the session. And also our dear His Grace Ramakrishna Prabhuji and Her Grace Sachi Yashoda Mataji. And then our organizers, Raghunandan, His Grace Raghunandan Prabhu, Usati Mataji, again Her Grace Usati Mataji, and
His Grace, our Anantarupa Prabhu, and Her Grace Bridget Vilasini Mataji, है ना. When we sit here, see how much respect and all. This is how the etiquette is, because we are used to saying Raghunandan Prabhu, Sati Mataji, है ना. But when we come here, we really need to be very respectful, respecting the Vyasas. So everyone will be giving a chance, so you understand how the feeling is. We are the controller. नहीं है, we are the servant of the controller. Hare Krishna. So again, can you remind me what was the verse we are talking about? Yeah, I can take any verse, but thanks. It's just 1.2.23. Before that, let me take the blessings of my Guru Maharaj. Okay, so the first chapter, first canto, पहला स्कंद का नाम क्या है? क्रिएशन, हिंदी में बोलते हैं सृष्टि, है ना. चैप्टर 2 है हम लोग, क्या नाम है? डिविनिटी एंड डिवाइन सर्विसेज, हिंदी में दिव्यता तथा दिव्य सेवा, है. एंड नाउ लेट्स सी फ्रॉम व्हाट डिड वी लर्न फ्रॉम द प्रीवियस वर्सेस, है ना. हमने पिछले जितने सारे हमारे गॉड ब्रदर्स ने क्लासेस लिए हैं, है ना, तो वहाँ पर क्या टॉपिक था और उन्होंने कब कितने तक कंटिन्यू किए, है ना. तो यहाँ पर जो है फ्रॉम दिस वी अंडरस्टैंड फ्रॉम 1.2.6 से लेके 1.2.21, है ना, जो हमने ऑलरेडी कवर किए हैं. यहाँ पर जो है ग्लोरीज ऑफ भक्ति हैज बीन डिस्क्राइब, है ना. भक्ति की महिमा के वर्णन किया गया है, ठीक है. तो हमने 21 वर्ष तक भक्ति के अलग अलग स्टेजेस तक पहुँचे थे. हम कौन से स्टेज तक पहुँचे थे हम क्या किसी को याद है? एक क्लू देता हूँ, शुरू होता है लेटर एस से. वेरी गुड. श्रद्धा से हम कहाँ तक पहुँचे? श्रद्धा से नेक्स्ट स्टेज है, हाँ, वेरी गुड. उसके बाद क्या होता है माता जी? जो हम कर रहे हैं, है ना. उसके बाद सब क्लियर हो गया, हमारा अनर्थ निवृत्ति, है ना. उसके बाद निष्ठा, करेक्ट, है ना. अनर्थ निवृत्ति हो गया तो फिर हमें फिक्स डिटर्मिनेशन. निष्ठा के बाद नहीं, रुचि, नहीं, निष्ठा के बाद रुचि, टेस्ट होता है. उसके बाद आसक्ति, है ना. फिर वी आर फुली डिटर्मिन, अटैच्ड हो जाते हैं. उसके बाद भाव स्टेज, है ना, भाव, और हम प्रेम में. तो यहाँ तक हमने 16 से लेके 21 तक वो हर एक स्टेज से हम ऊपर उठ रहे थे. जैसे ग्रेड 1 से हम 10वीं तक आते हैं पास होके, तो वैसे हमने यहाँ पर भी पढ़ के हमने आया है. अप्लाई किया है नहीं किया वो दूसरी बात है, एटलीस्ट पहले हम पढ़ तो लें, है ना. उसके बाद हम स्लोली अप्लाई करेंगे. भाव और प्रेम में बैठ के कैसे लग रहा है आप लोगों को, है ना. कितना अच्छा लग रहा है. यस माता जी, आपको कोई प्रश्न है? क्या आप प्रेम में नहीं है, भाव में नहीं है? माता जी देखो कितनी ग्राउंडेड है अभी भी, है ना. बोल रहे प्रभु मैं नहीं हूँ, मैं अभी भी वैसे ही हूँ, इनसिग्निफिकेंट सोल, है ना, सर्विटर ही हूँ, ठीक है. तो अच्छा है आप लोग नहीं है. सब भाव में होता तो मैं क्या करता है इधर बैठ के, है ना. चलो, तो वहाँ उसके बाद ये हुआ वर्स 21 का. और उसके बाद जो है हमने 22 मतलब जो 22वां श्लोक था जो हमारे प्रिय रघुनंदन प्रभु ने लिए थे, तो उसमें बताया था कि जब भक्ति करते हैं, है ना, सो व्हेन वी डू भक्ति, ओके, सो वी आर डूइंग द भक्ति विद डिलाइट. जैसे भी आपने देखा कैसे हमने आरती किया, कुछ लोग डांस कर रहे थे, कुछ लोग अपने क्या पिछले कर्म का सोच के टेंशन ले रहे थे, फ्यूचर क्या प्लान करूं. तो देखो कितने वेराइटीज होता है यहाँ पर, है ना. जबकि हम सब लोग कीर्तन कर रहे हैं, अलग अलग लोग हैं, सबके अपने अपने थॉट्स है. तो ये है वेराइटीज. तो उसका एक्सप्लेनेशन जो है मैं आगे बताऊंगा. लेकिन बेसिकली हम लोग जो आरती कर रहे थे सब खुशी से डांस कर रहे थे, है ना, करताल बजा रहे थे, कोई अपना सब अपने एंजॉय कर रहे थे. मतलब भक्ति हम कर रहे थे विद डिलाइट. और इससे क्या होता है, एंड लिविंग, है ना, हमें एक जोश आ जाता है ना, भक्ति के जोश में. सो वी आर ऑल डूइंग. तो ये हमने किया था, जब भक्ति करते हैं हम लोग, वी डू इट विथ वेरी हैप्पीनेस एंड देन वी गेट एंड लिविंग हो जाते हैं हम. अब जो ये था एक सेक्शन. अभी जो नेक्स्ट सेक्शन है वर्स 23 से लेके 29 तक अब जो शुरू हो रहा है, ठीक है ना. तो इसमें जो है भगवान के बारे में ग्लोरीफाई किया है ना. जो भगवान है वो है ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप,
है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पर भौतिक जगत में अलग अलग प्रकार के विश्वास है ना, पूछते हैं हम अलग अलग भगवान को। लेकिन भागवतम में स्पेशली ये जो सेक्शन है ना, 23rd से लेके 29th तक, यहाँ पर जो है भगवान, कौन भगवान है? श्री कृष्णा भगवान है, उनको हमें पूछना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं वर्स से 1.2.23। आई विल रिसाइट विथ माय ओन ट्यून। तो आप लोग पहले मैं एक लाइन करूंगा, उसके बाद आप एक लाइन करना, ठीक है? नहीं, पूरा पूरा करना है, लाइन लाइन करना है। लाइन मारने का हमें तो आदत ही है ना, या तो लाइन में खड़ा रहना है, या लाइन में, इंडियंस इसके लिए बहुत फेमस है। नहीं है तो भी पहले 5-6 घंटे पहले लाइन में खड़ा रहता है, लाइन लेकिन चाहिए हमें। तो लेट्स स्टार्ट विथ लाइन बाय लाइन, ठीक है? फर्स्ट वन, सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्ते युक्तः परः पुरुष एक इहस्य दत्ते स्थित्याधय हरिविरिञ्चि हरेति संज्ञः श्रियांसि तत्र कलौ सत्त्वतनुर्नृणां स्युः सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्ते युक्तः परः पुरुष एक इहास्य दत्ते स्थित्यादया हरिविरिञ्चि हरेति संज्ञः श्रेयांसि तत्र कलौ सत्त्वतनुर्नृणां स्युः So I'll tell all together now and then you can repeat. Sattvam rajastama iti prakrtirgunaste युक्तः परः पुरुष एक इहास्य दत्ते स्थित्यादया हरिविरञ्चि हरेति संज्ञः श्रेयांसि तत्र कलौ सत्त्वतनुर्नृणां स्युः इति प्रकृतिर्गुणास्ते युक्तः परः पुरुष एक इहास्य दत्ते स्थित्यादया हरिविरञ्चि हरेति संज्ञः श्रेयांसि तत्र कलौ सत्त्वतनुर्नृणां स्युः. So one Mata and one Prabhu, please. Hare Krishna. सत्वं रजस्तम इति प्रकृतिर्गुणास्ते युक्तः परः पुरुष एक इहस्य दत्ते स्थित्यादये हरिविरिञ्चि हरेति संज्ञः श्रेयांसि तत्र कलौ सत्त्वतनुर्नृणां सत्वं रजस्तमिति प्रकृतिर्गुणास्ते सत्वं रजस्तम इति प्रकृतिर्गुणास्ते युक्तः परः पुरुष एक इहस्य धत्ते युक्तः परः पुरुष एक इहास्य दत्ते स्थित्यादये हरिविरिञ्चि हरेति संज्ञः स्थित्यादया हरिविरिञ्चि हरेति संज्ञः श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनुर्नृणां स्युः Hare Bol. So the translation: the transcendental personality of Godhead is indirectly associated with three modes of material nature, namely passion, goodness, and ignorance, and just for the material world's creation, maintenance, and destruction. He accepts the three qualitative forms of Brahma, Vishnu, and Shiva. Of these three, all human beings can derive ultimate benefit from Vishnu, the form of the quality of goodness.
So I request one Mataji or Prabhus to read it in Hindi, the translation, translation by His Grace Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Yes, anyone has Hindi? Yes, go ahead. Hare Krishna. श्री प्रभुपाद की जय। दिव्य भगवान प्रकृति के तीनों गुणों सत्व, रज तथा तम से अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध है और वे भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन तीन गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। इन तीनों रूपों में से सत्व गुण वाले विष्णु से सारे मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हरि बोल। सो हम जो है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन किए नहीं है, तो भी हम करेंगे जब लेट्स टेक द फर्स्ट लाइन। So the first line for whoever has the soft copy, because here we don't have the facility to put it on the screen. So the first line was Sattvam Rajas Tama iti prakrte gunaste. So let's break it down. हम उसको एक एक वर्ड देखते हैं। सत्वम मीन्स सभी को पता है गुडनेस, सत्वगुण है ना। रजा पैशन, रजोगुण। तमा डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुण। इति दस। प्रकृति मेटीरियल नेचर, प्रकृति जिसे कहते हैं ना। गुण क्वालिटीज और ते बाय दम है ना। तो यहाँ पर हम क्या समझते हैं, तीन क्वालिटीज है मेटीरियल वर्ल्ड के, है ना। कौन से हैं? गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस। क्या हमें इन्वॉल्व है ये सब? ये हमारे लिए नहीं है, बेसिक दूसरों लोग के लिए। हम तो हमें हमेशा गुडनेस में है ना मदर जी, नहीं। एनीवेज, तो ये कुछ नई चीज नहीं है, हम सभी लोग उसमें से गुजरते हैं, है ना। इट डिपेंड्स ऑन टाइम, प्लेस, जो भी टेस्ट है, वेराइटीज जो मैंने बताया था अभी सुबह आरती में, तब उस हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में जाते हैं। युक्तः परः पुरुष एक इहास्य दत्ते, है ना। युक्त मतलब उनसे जब जुड़ते हैं, एसोसिएशन, है ना, समन्वित। परः मीन्स ट्रांसेंडेंटल। पुरुष द पर्सनालिटी, है ना। परम पुरुष कौन है? कृष्ण है। और पुरुष कौन है? परम पुरुष भी कृष्णा है, पुरुष भी कृष्णा है, फिर हम क्या है इधर? हम भी तो पुरुष है ना प्रभु। पुरुष मतलब एंजॉयर। हम क्या कम एंजॉय करने आए? अब क्यों आए इधर? हम भी एंजॉय करने आए हैं। क्या एंजॉय करने हैं? प्रसादम एंजॉय करने, कीर्तन एंजॉय करने हैं। सेवा के लिए कोई एंजॉयमेंट है प्रभु? वो है रियल भक्त, है ना माता जी। एनीवेज, ये थोड़ा फैक्ट्स है, थोड़ा दिल को लग जाएगा माता जी, इस वर्गे नहीं। मैं भी आप लोग के जैसे ही हूँ, जो यहाँ बैठा है, मौका मिला है, तो व्हाई नॉट टू यूज इट, है ना। ओके, अगले वाला। स्थित्यादय हरि विरिंचि हरेति संज्ञाः। स्थित्यादय भगवान वो बोले कि एसोसिएशन में आए, है ना। गुडनेस एसोसिएशन, गुडनेस, पैशन और तमोगुण में आए, है ना। तो जब इनके साथ मिलते हैं, है ना, द मैटर ऑफ क्रिएशन के लिए क्या होता है? क्रिएशन मतलब सृष्टि और मेंटेनेंस के लिए पालन, एंड डिस्ट्रक्शन संहार, है ना। मैंने बहुत मेहनत किया है। हरि, है ना, हरि जिसको बोलते हैं विष्णु। और वृंची, वृंची कौन है? ब्रह्मा। क्यों वृंची नाम दिया उनको? पेट नेम होगा शायद, है ना। हर एक का होता है लल्लू, टिंगू, मुंगू, है ना। तो ऐसे हुआ है नहीं। ये जो वृंची है, इसका संस्कृत, आप लोग संस्कृत जानते नहीं होंगे ना। मुझे बड़ा पता है संस्कृत, मैंने भी तो संस्कृत में मैंने गूगल किया है, और कुछ बात नहीं। मतलब वृंची जो है, बताया गया है कि क्रिएटर, है ना। वृंची संस्कृत में जो बोलते हैं वो जो है क्रिएटर, और जो इंजीनियर होता है, जो बनाते हैं, तो उस हिसाब से ब्रह्मा जी का नाम दिया है वृंची, ठीक है। हरा, हरा है लॉर्ड शिवा। इति 10 डिफरेंट फीचर्स। तो ये है अलग अलग फीचर्स जो भगवान ने फॉर्म दिया है। एक्सप्लेनेशन अभी आगे आएगा, मैं जस्ट रीड कर रहा हूँ। सो जस्ट फॉर द मटेरियल वर्ल्ड्स क्रिएशन, तो हम कहाँ है? स्वर्गलोक में है, फिर अजमान में है, वृंदावन धाम तो है, नाम लिखा है, हम वृंदावन धाम में है ना माता जी। और बोलते हैं सब भक्त जो मिलते हैं वृंदावन भी हो जाते हैं। अब और क्या चाहिए? मेटीरियली भी वृंदावन है, स्पिरिचुअली भी वृंदावन है। बैक टू गॉड हेड, कितना इजी बनाया देखो भगवान ने, है कि नहीं।
बस आधा घंटा शारदा से ड्राइव करना है, आ गए हम वृंदावन। लेकिन जो वृंदावन में रहते हैं उनको पूछते हैं सही में वृंदावन है या कैसा फीलिंग है, क्या हर घर घर की कहानी यहाँ भी चलता है। ये है आप लोग को डिटेक्ट करने का। तो माता जी पीछे बैठी, अभी नहीं बताना माता जी, बात नहीं बताना, नहीं तो फिर कोई आएंगे नहीं इधर। क्योंकि मैंने क्लास में देखा था, बड़ा प्रवचन चल रहा था सच्ची माता जी और यहाँ के जो लक्ष्मी नारायण जो है ना, तो सस्पेंस में रखता हूँ इसको। आगे बढ़ते हैं, प्लीज ध्यान भटकना नहीं। ये जो है माया का शक्ति है जो मुझसे कह रहे हैं, और आप लोग का टेस्ट हो रहा है कि आप अभी भी श्लोक में है या आप गए अपने घर घर की कहानी में। प्लीज वापस आ जाइए अगर गए हैं तो, जो नहीं गए हैं आप वहीं पे टिके रहिए। तो नेक्स्ट लास्ट लाइन जो है ना, श्रीयांसी तत्र कलो सत्व तनु नाम सी, श्रीयांसी अल्टीमेट बेनिफिट है ना। तो हम कुछ भी चीज करेंगे तो पहले वही देखते हैं प्रभु कितना फायदा है ना। तो देखो भगवान कृष्ण में कितने कृपालु, उन्होंने भी, हमें पता है कलयुग के लोग फायदा ही देखते हैं, तो बताया कि देखो अल्टीमेट बेनिफिट क्या है, लाभ जो है यहाँ पर, तत्र देयर इन कलो ऑफ कोर्स सत्व गुडनेस तनु फॉर्म नृणाम ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स मनुष्य डिराइव है ना। तो लास्ट टाइम यही बोल रहे हैं कि भगवान विष्णु के हमें पूजा करना चाहिए। तो हमने अभी कितने कितने देवता सुना है, 3 पैशन के हिसाब से, आई मीन 3 पैशन है, तीनों गुण के हिसाब से। वी हर्ड अबाउट 3 गुणास है ना। तो कौन से गुण के कौन से पर्सनालिटीज है? एक मिनट मैं पूछता हूँ तो कॉमनली सुनते हैं, नहीं तो ऐसा होगा कि वो मार्केट जैसा है। अब मेरा भी तुक्का चल गया। तो पहला 3 गुण में फर्स्ट आता है गुडनेस। तो गुडनेस का कौन है पर्सनल हेड, आई मीन डिपार्टमेंटल हेड है ना गुडनेस का। पैशन का हाँ ब्रह्मा जी। और इग्नोरेंस तमोगुण का लॉर्ड शिवा। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया, इतना ही बोलना था मुझे। चलो चलते हैं प्रसाद। अब मैं जो है हिंदी में पढ़ने की कोशिश करता हूँ, तो हमें भी अवसर देना चाहिए कि नहीं। दिव्य भगवान जो है प्रकृति के 3 गुणों सत्व रज तम से अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है, और भौतिक जगत के उत्पत्ति पालन संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु शिव के 3 गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। इन तीनों रूपों में से सत्व गुण वाले विष्णु के सारे मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने समझ में आए। अब जो है मैंने ज्यादा कुछ उधर इधर नहीं भटका, मैंने जो पर्पट है उसी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश है। ठीक है, तो आप लोग के पास है पर्पट, तो देखें। तो फर्स्ट 2 पैराग्राफ जो है इसमें बताया है द डिविनिटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड हिज प्लेनरी एक्सपेंशन। जो पहले जो पैराग्राफ है तो शुरू किया है श्रील प्रभुपाद ने कैसे, तो पहले है कि भगवान कृष्ण और उनके प्लेनरी एक्सपेंशन है ना, तो वो सबसे पूजनीय है ना। वी हैव टू रेंडर डिवोशनल सर्विस टू देम, दैट इज द आइडिया। एंड ये पूरा वर्स का इतना ही मतलब है कि वी हैव टू वर्शिप, जो गुना अवतार है उसमें लॉर्ड विष्णु को हमें पूजना है। ठीक है, अब जो श्रील प्रभुपाद ने इसमें शुरू किया है, पहले तो भगवान श्री कृष्ण उनको ही पूजना है वो है, और नेक्स्ट लाइन में है कि सृष्टि के बारे में शुरू किया है। तो सृष्टि के पहले भगवान कृष्ण है ना, सृष्टि करके भी वो रहेंगे और उसके बाद भी लॉर्ड कृष्ण है। ठीक है, सो ये हमें समझना है कि कृष्ण वही नहीं है जो महाभारत में आए और कोई मानते हैं ना उन्होंने सिर्फ उनके लिए रूप लिया, तो ऐसे नहीं है। यहाँ पर देखो श्री प्रभुपाद ने पॉकेट में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने क्रिएशन है ना, सृष्टि शुरू किए। तो पहला सबसे फर्स्ट मैनिफेस्टेशन या प्रकट्य कौन है भगवान कृष्ण के सृष्टि के? अगर आपने डायग्राम देखा होगा तो करेक्ट है ना, तो बलदेव है। तो फर्स्ट जो श्री कृष्ण उन्होंने मैनिफेस्टेशन लिया है बलदेव जी से, और बलदेव से आता है पहला चतुर्व्यूह है ना। वो कौन कौन से हैं? एस से स्टार्ट होता है, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध है ना। तो ये 4 है, लेकिन फिर सृष्टि कहां से कंटिन्यू होता है? कृष्ण से बलदेव जी आए, चतुर्व्यूह आए, और संकर्षण से फर्दर एक्सटेंड होगा नारायण, नारायण से फिर सेकंड चतुर्व्यूह होगा। सेकंड चतुर्व्यूह में कौन आएगा?
वापस वही है ना, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध आएंगे और फिर संकर्षण से आगे सृष्टि होगा जहां पर कितने पुरुष अवतार आते हैं? 3 पुरुष अवतार। क्या क्या नाम है? पहला कारणदकोशाही विष्णु है ना, उनके क्या होता है? उनके ब्रीदिंग और एक्सेल से, इनहेल एक्सेल से, हाँ, जितने हमारे यूनिवर्स है ना, ब्रह्मांड निकलते हैं उनके बॉडी से, है ना, वो कारणदकोशाही विष्णु। हाँ हाँ, तो थोड़ा ढूंढना आप लोग, फाइंड मी वेयर यू आर, अभी आने वाले आगे, ठीक है ना। तो वो पहले आता है कारणोदकशाही विष्णु, जिनके शरीर से जितने ब्रह्मांड निकलते हैं, है ना। सेकंड जो है विष्णु जी के, जैसे बोलते हैं 3 एक्सपेंशन या 3 विष्णु जी है। तो पहले जो है कारणोदकशाही विष्णु, जिनके शरीर से जो है जितने ब्रह्मांड निकलते हैं। दूसरे जो है गर्भोदकशाही विष्णु, है ना, वो कहाँ रहते हैं? जितने सारे ब्रह्मांड भगवान के शरीर से निकले सभी के अंदर गर्भोदकशाही विष्णु बैठा होता है, ठीक है, बैठा नहीं होता, लेटा होता है पानी में, है ना, नाग के साथ। तो जैसे बोलता है कि यू कैन अंडरस्टैंड दैट एज ए नारियल। हम साउथ वाले लोग तो बहुत नारियल यूज करते हैं, नॉर्थ वाले कम यूज करते हैं। नारियल पता है ना आप लोग को कैसे होता है? उनके हार्ड शेल होता है, अंदर फिर पानी भरा होता है आधा सा, तो उस तरफ से एक एक ब्रह्मांड है जिसमें आधा पानी भरा हुआ है और उसमें लेटा हुआ है गर्भोदकशाही विष्णु। सो गर्भोदकशाही विष्णु को बोलते हैं परमात्मा एक ब्रह्मांड है, ठीक है। और उसके बाद कौन सा विष्णु है? क्षीरोदकशाही विष्णु। वो विष्णु है क्षीरोदकशाही विष्णु जो हर एटम के अंदर, हर जीव के अंदर एज ए परमात्मा जैसे होते हैं, है ना। बोलते नहीं है परमात्मा से आई विल गिव यू द अंडरस्टैंडिंग हाउ टू कम टू मी, है ना। तो ये जो भी बोल रहे हैं वो है क्षीरोदकशाही विष्णु। तो ये यहाँ पर बताया गया था श्रील प्रभुपाद ने, यहाँ पर जितने पुरुष अवतार है उन्होंने बताए। और इसमें जो है विष्णु, है ना, जो यहाँ पर बताया था डेटी ऑफ क्वालिटी ऑफ गुडनेस, है ना, सत्व गुण के विग्रह है इन द मटेरियल वर्ल्ड इज द पुरुष अवतार नोन एज क्षीरोदकशाही विष्णु, है ना। तो जो विष्णु हम बोल रहे हैं यहाँ पर कौन सा मोड का है? गुडनेस का, तो वो है क्षीरोदकशाही विष्णु, ठीक है। तो ये था अंडरस्टैंडिंग पहले पैराग्राफ का। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। यहाँ पर बताया है 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर का, जो आपने ऑलरेडी बताया है, क्योंकि ब्रह्मा जी जो है विग्रह है ऑफ पैशन। पैशन क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया, शुरू किया, है ना। कोई भी चीज हम शुरू करते हैं, जैसे कि ये बंगला बनाना है या बिल्डिंग बनाना है ना, तो वो उसके लिए हमें चाहिए पैशन बनाना है। पैशन से हम बना सकते हैं, है ना। पैसा चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, और फाइनली वो बिल्डिंग बन जाता है। तो इसलिए ब्रह्मा जी को जो यहाँ पर बताया है द डिपार्टमेंट हेड ऑफ पैशन। नेक्स्ट जो है रजस, नहीं, नेक्स्ट जो है गुडनेस, क्योंकि वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है ना। तो नेक्स्ट जो है गुडनेस। गुडनेस का क्या फीचर है? मेंटेनेंस, है ना। कोई भी चीज, अभी समझो प्रभु ने ये इतना अच्छा बंगला बनाया है ना, तो बंगला बनाने के लिए उसका एक फिक्स टाइम होता है ना, 3 साल 4 साल होता है, लेकिन मेंटेनेंस कब तक चलता है ना, पूरे जन्म भर, या अगर अगला फैमिली जनरेशन को जाएगा तो फिर भी। तो मेंटेनेंस जो है बहुत डिफिकल्ट है कोई भी चीज, है ना। तो कुछ एग्जांपल है, जैसे कि गाड़ी है, रोटी है, नहीं रोटी नहीं, कपड़ा है, नहीं कपड़ा नहीं, जो भी है ना, कोई भी कुछ मेंटेन करने के लिए थोड़ा टाइम और मेहनत लगता है, तो उसको बोलता है गुडनेस, ठीक है। उसके बाद होता है इग्नोरेंस, है ना, तमो। तमो का कि कौन है? शिव जी, है ना। अब ये बंगला ने में कोई बोलता, कोई पुराना बंगला होगा तो उसको तोड़ने को ज्यादा टाइम नहीं लगता, सो दैट इज वेरी इजी, है ना। तो इसलिए पता है कि क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन इज वेरी इजी, क्योंकि उसको एक टाइम लिमिट होता है, लेकिन मेंटेनेंस बहुत चलता है। सो दैट इज मेंटेनेंस इज डिफिकल्ट टास्क एंड इट इज इन द मोड ऑफ गुडनेस। तो जो है, तो इससे हमें क्या मालूम पड़ता है कि कौन सा सबसे टॉप में है ना, मोड ऑफ गुडनेस। और इस तरफ से गुडनेस का कौन है डिपार्टमेंट हेड? लॉर्ड विष्णु। सो दैट्स व्हाई लॉर्ड विष्णु हैज बीन गिवन ए हायर रोल, आई मीन
रैंकिंग में उनका ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, जिसमें है वर्शिप ऑफ विष्णु, क्योंकि हम समझ गए क्योंकि विष्णु तीनों गुणों से सबसे टॉप रैंकिंग में है, या वेरी पायस है, बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन बीइंग, ठीक है। वो क्यों, आगे समझते हैं, ठीक है। मेटीरियलिस्टिक एंड फुलिश ह्यूमन बीइंग्स वर्शिप ब्रह्मा एंड शिवा, ठीक है। ये मैंने नहीं बोल रहा हूँ, ये परपट में श्रीला प्रभुपाद ने लिखा है, ठीक है। मेटीरियलिस्टिक्स कौन कौन है? आप लोग नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ, है ना। और मूर्ख कौन है? वो भी आप लोग नहीं है, मैं ही हूँ, है ना, क्योंकि मुझे बाहर निकलना है और माता जी प्रभु ज्यादा है यहाँ पर, तो मार पड़ी तो भी हॉस्पिटल वैसे भी मेरा है कॉन्टैक्ट्स, इमरजेंसी में कॉन्टैक्ट बना के रखा है। हाँ, लेकिन क्या है, डॉक्टर लोग के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, है ना। जो पैर के डॉक्टर है उसको नहीं पता कि क्या आंख में हो रहा है ना, तो जब मार पड़ेगी तो कौन से पार्ट में पड़ेगी वो नहीं पता। तो एनीवेज कहने का मतलब ये है कि जो कौन कौन है यहाँ पर, किसका दो पर्सनैलिटीज का मैंने जिक्र किया, जो ब्रह्मा जी और शिव जी को पूछते हैं। देखो कोई नहीं बोल रहा है, सबकी श्रद्धा देखो कितना है। हाँ, इंग्लिश में बोलते हैं मेटीरियलिस्टिक एंड फुलिश, हिंदी में क्या बोलते हैं? भौतिकवादी और मूर्ख लोग होते हैं। भाई क्यों? एक तो पूजा तो करते हैं, ऊपर से बोलते हैं मूर्ख भी है, और बोलते हैं कम से कम मेरे क्या नॉर्मल वर्ड्स जो आ नहीं रहे, तो ओके एनीवेज चलो, तो हमें ये तो समझ में आया कि मेटीरियलिस्टिक और मूर्ख जो हैं वो मानते हैं वो ब्रह्मा जी और शिव जी को पूछते हैं। लेकिन शिव जी को जब हम पूछेंगे तो जो मांगे मिलता है ना, है कि नहीं, फटाफट दे देते हैं। फिर क्यों बोला है मूर्ख है करके और फुलिश है? रोटी चाहिए, बंगला चाहिए, मकान चाहिए, लेकिन एक चीज है, मेरी पास माँ है। ये डायलॉग बहुत फेमस है। तो इस तरफ से यहाँ पर जो है आपने सारे कुछ बोला, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, सब कुछ, लेकिन जो मेन है भक्ति है ना, वो कौन देता है? भक्ति से क्या मिलता है ना, वृंदावन में तो बैठा है, और कितना चाहिए आपको मतलब ने। लेकिन माता जी ने सही बोला है ना, जो भक्ति करते तो हमें ज्ञान और वैराग्य है ना, डिटैचमेंट मिलता है, और जिससे हम हमारे सेंसेस को जो है प्यूरिफाई करके हम जाएंगे गोलोक वृंदावन, जैसे आप माता जी ने बताया, ठीक है। तो ये शिव जी और ब्रह्मा जी की जो पूजा करते हैं, तो हम जो मटेरियल वर्ल्ड में है, हमारी फैसिलिटीज जो है अच्छा करने के लिए हम उनको पूछते हैं, लेकिन हमारी ये जो कमजोरी ये है कि एक विश अगर सक्सेस हो गया, उसके पीछे तो हमें बड़ा सा लिस्ट बनाना है ना। अगर हमें मालूम पड़ गया वहां से काम हो रहा है, तो जितने हमारे मेंबर्स हैं वहीं पे लाइन लगाना शुरू कर दे, किधर की लाइन लगाने वाला तो है ना, तो हमारे लाइन वहीं पे शुरू हो जाती है। तो इसलिए बताया मूर्ख, क्योंकि हम लोग मटेरियल वर्ल्ड को फैसिलिटेट अच्छी तरह से वही निभाने के लिए, देखो जैसे हम 1 बेडरूम में भी रह सकते थे, है ना, क्या फायदा था? ये एक फायदा है जिसके पास 1 बेडरूम है, और जिसके पास 5-6 बेडरूम वाला रूम है, फायदा क्या है उसमें और नुकसान क्या है? बोलो माता जी। एक तो कम पैसे से मिल जाता है ना, हम लोग बहुत सारे पैसे बचा भी सकते हैं, और क्या है, जितने मेंबर्स हैं आजू बाजू में थोड़ा हिला दूसरा मेंबर को लग जाता है, मतलब मालूम है कि वो क्या कर रहा है ना। अगर 5-6 बेडरूम किया तो उसकी बेटी गया ऊपर 4th फ्लोर, ये 4th फ्लोर 5th फ्लोर में, हमें मालूम ही नहीं कि क्या हो रहा है, तो हमने पता ही नहीं होता, तो फैमिलीज में थोड़ा सा इश्यूज हो जाता है। तो इसलिए बोलता है कि माता जी इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपका तो बहुत सही है माता जी, ये 3 बेडरूम ज्यादा नहीं जाना है, ऊपर ही है ना माता जी, एक दो स्टेप तो ऊपर चढ़ेंगे तो हो गया 1st फ्लोर, कितनी अच्छी बात है ना। तो इस तरफ से ये भी एक फायदा है कि जितना फैमिली मेंबर्स नजदीक रहते हैं तो हमें एक दूसरे का पता। अब तो चलो कलयुग का असर तो पड़ रहा है, तो जॉइंट फैमिली किस किस के पास है? किसी के पास नहीं है ना, क्योंकि फॉर्मूला ऐसे बोल के ही आते हैं, क्योंकि सीरियल देखने से पहले फॉर्मूला मालूम पड़ जाता है कि मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ कभी पट्टी नहीं है, तो पट्टी भी होगी तो बोलेंगे पटना नहीं चाहिए, क्योंकि मेट्रोल में है तो होना नहीं चाहिए, तो ये सही नहीं है ना। तो इस तरफ से ये फॉर्मूला से आता है। और जैसे ऐसा नहीं मेरी पत्नी ऐसा किया, मैं ऐसी बोला है ना, जैसे कोई शादी करके आता है तो बोला मदर इन लॉ कैसे भी पटा देना है ना, अगर नहीं पटती तो बोला हमें अलग से रहना है, पहले न्यूक्लियर फैमिली है ना, क्योंकि झगड़े के बाद फिर न्यूक्लियर फैमिली होनी अच्छी बात नहीं है, पहले से हम लोग बना के रखते हैं अलग अलग, और वीकेंड में मिलते हैं, क्या प्रॉब्लम है?
एक तरफ से यहाँ का अरेबिक स्टाइल ऐसे ही है, तो मैं भी सोच रहा था ये हमने पहले ही करना चाहिए था, है ना, क्योंकि हमने क्या थोड़ा सा लड़ाई वड़ाई करके है, अर्जुन ने लड़ाई की तो हम भी कर सकते हैं घर में, है ना, हमने भी थोड़ी बहुत लड़ाई करके अच्छा ही हुआ, जो भी होता है अच्छा ही के लिए होता है ना, हम पहुंच गए दुबई, है ना, और फिर हम जाते हैं समर में वंस इन ए वाइल रिलेशन मेंटेन करने के लिए, क्या प्रॉब्लम है ना। इनमें मैं मुद्दा से हट गया थोड़ा सा, सॉरी फॉर रिमाइंडिंग। एक प्रभु ने आंख दिखा के बोले क्या प्रभु हमारा सब सही चल रहा है, अच्छा, तो मैं बोले वेरी गुड, कभी भी आ सकते प्रभु बहुत स्ट्रांग है वो। एनीवेज आगे चलते हैं हम, देखते हैं यहाँ पर जो फॉर्म है, मैंने बताया था कि विष्णु जी का हमें डिवोशनल सर्विस करना चाहिए। अब आ रहे हैं क्यों स्लोली। विष्णु जी जो है बहुत सारे, जैसे बताया हमारे अंदर सब कुछ, सबके अंदर तो कितने टुकड़े हुए हैं, टुकड़े नहीं हुए, उन्होंने एक्सपेंड किए, है ना। कौन से विष्णु एक्सपेंड हुआ भाई, 3 विष्णु थे, चेक करने के लिए कोई सुन रहा है कि नहीं, तो कुछ नहीं बोल। कौन सा विष्णु माता जी, महाविष्णु, तालियां बजाइए, गलत है। दूसरा कौन मतलब, शिरोदकाशाही विष्णु, है ना। तो शिरोदकाशाही जो है उन बहुत सारे एक्सपेंड करके बहुत 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 मिलियंस एंड बिलियंस हो जाते हैं वो, ठीक है। तो इसमें फिर 2 रूप आता है, कौन से 2 रूप ये प्रॉब्लम है माता जी, आगे बैठ के हंसते ना तो क्या, प्रभु तो एकदम बटर है ना माता जी, कौन बटर है, प्रभु बटर है, बराबर है, माता जी फायर है, ये मैंने वो बोला ना, नहीं फायर पुष्पा को फ्लावर समझाएगी, नहीं फायर है। तो यहाँ पर बताया है कि भागवतम में माता जी फायर है और हम प्रभु बेचारे बटर हैं। एनीवेज आप लोग फिर से सोचिएगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछने वाले थे कि यहाँ पर 2 रूप बताए हैं विष्णु जी के, इतने सारे एक्सपेंशन हुए हैं, हर एक जीव के अंदर है, हर एक एटम के अंदर है ना। तो 2 रूप है, एक है इंटीग्रेटेड फॉर्म और एक है सेपरेटेड फॉर्म। अब आप बताइए, इंटीग्रेटेड फॉर्म हिंदी में बताता हूँ, अभिन्न है रूप और भिन्न वाला रूप। अभिन्न मतलब सेपरेट नहीं हुआ है ना। तो एज इट इज भगवान के जो है प्लेनरी एक्सपेंशन जो बोलते हैं, विष्णु तत्व जो होते हैं, है ना, तो वो उनको बताया है इंटीग्रेटेड फॉर्म, जो भगवान के ही क्वालिटीज उनके पास है और उनके पोटेंसी शक्ति भी उतना ही है। और जो भिन्न हुआ है, आई मीन सेपरेटेड, कौन है वो, जीव तत्व, है ना। तो हम भी क्वालिटेटिवली सेम है, डिफरेंट है, सेम है ना। हमें भी प्यार होता है, क्या तुमने किसी से प्यार किया, कौन है, हाँ मैंने भी किया है, भगवान कृष्ण से किया है और बीवी से भी किया। अच्छा लगता है ना माता जी, कभी कभी माइक में तो पब्लिकली तो बोलना चाहिए, फिर घर की बात अलग है। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं मेरे क्लास होने से पहले, ठीक है। भिन्न और अभिन्न हम समझ गए क्या है, अभिन्न और भिन्न, इंग्लिश वाला भिन्न है, हिंदी वाला भिन्न। इंग्लिश वाला भिन्न में क्या होता है, हाँ, तो यहाँ पर हिंदी वाला भिन्न है। तो हिंदी वाले में 2 टाइप के हैं, एक है इंटीग्रेटेड फॉर्म, जो भगवान के ही फॉर्म है, फॉर्म नहीं है, भगवान के ही शक्ति, क्वालिटी, पोटेंसी उनमें सेम होता है। और जो भिन्न है, सेपरेटेड है, वो क्वालिटी वाइज सेम है, मतलब जैसे हमें किसी से प्यार, जिसके साथ अटैचमेंट, जितने रस है ना, रसास है ना, रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए भगवान ने इतने सारे हमारे एक्सपेंशन हुए हैं, ठीक है। तो जो भिन्न है उसमें क्वालिटी वाइज सेम है, लेकिन क्या डिफरेंट है, क्वांटिटी वाइज, है ना। जैसे बोलता है कि समंदर है ना, ओशन का 1 स्पून अगर हम ओशन का पानी ले लेते हैं, तो ओशन का पानी का जो क्वालिटीज है ना, जो सॉल्टीनेस है, वो 1 स्पून पानी में भी वो तो सेम क्वालिटीज मिलेगा, लेकिन डिफरेंट क्या है, सुनामी सिर्फ ओशन में होता है, 1 चम्मच पर पानी में नहीं होता है, ठीक है। तो उस तरफ से यहाँ पर बताया है कि सेपरेटेड फॉर्म्स और इंटीग्रेटेड फॉर्म्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्योंकि भिन्न है और स्मॉल है, इससे क्या हुआ हमारे डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेजेस भी है। क्योंकि हम जीव है, सेपरेटेड है, हमारे ऊपर माया का प्रभाव, असर पड़ता है। और इंटीग्रेटेड वाला विष्णु तत्व में क्या उन पे होता है माया का असर, नहीं होता है ना, क्योंकि भगवान ने एनर्जी बनाया है ना, इंफीरियर एनर्जी, है ना। तो जिसने बनाया है एनर्जी, क्या उसके ऊपर असर कर सकता है, नहीं बना सकता,
है ना। तो उस तरफ से यहाँ पर जो इंटीग्रेटेड फॉर्म है उनके ऊपर माया का असर नहीं होता है, और जो हम हैं सेपरेटेड, है ना, जैसे विभु और अनु बताया है ना, भगवान को विभु और हम अनु है, और जैसे एग्जाम्पल है गोल्ड माइन और हम है 1 पाउडर ऑफ गोल्ड, है ना। तो उस तरफ से जो जीव है उनके ऊपर माया का असर होता है, ठीक है। तो हमने देखा है कि भौतिक शक्ति अपने वंश में रखते हैं, किसको? जीव को, है ना। दैट्स वाई अभी जब हम क्लास भी ले रहे हैं तो आधा लोग तो मुंह खोल के सो रहे हैं, कोई कराटे ले रहे हैं और कोई देख रहे हैं। देखो ये क्या हुआ, ये माया का असर है। तो जो सो रहा है वो कौन से गुण में है? वो एक्चुअली सो नहीं रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि तमोगुण में है करके, हमारे एग्जाम्पल दे रहे हैं। इतने बड़े बड़े हमारे भक्त हैं यहाँ पर, और जो सुन रहे हैं और समझ रहे हैं वो क्या है? कोई नहीं बोल रहे, हाँ, सत्व गुण में है ना। और जो पैशन में है वो क्या कर रहा है? वो बाहर वो प्रसादन के लिए रेडी कर रहा है ना, वो चटाई खींच रहा है, वो रोज अरेंज कर रहा है, माइक नहीं चल रहा है, ये देख क्या टेंशन है, कितना प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है, कभी हो रहा है ना। या बुक लगा होगा तो देखो सर, हमारे सामने तीनों गुण हैं। हम बोलेगा हाँ माया बाहर है, हम तो अंदर ही है ना। तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे वेराइटीज होते हैं लोगों के, ठीक है। अब थोड़ा मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ। इंटीग्रेटेड फॉर्म या अभिन्न रूप का वो है प्लेनरी एक्सपेंशन ऑफ द लॉर्ड। वो भगवान से अलग नहीं है, नॉन डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन बोला तो क्या हुआ? शुरू कहाँ से हुआ सृष्टि? भगवान कृष्ण थे, फिर बलदेव जी है, फिर तो इसलिए ओरिजिन बोलता है कि भगवान श्री कृष्ण को, है ना। तो उनके जैसे मैंने बताया था इंटीग्रेटेड फॉर्म में उनको सेम पावर होता है, सेम स्टेटस। एग्जाम्पल्स है बलराम जी, विष्णु, नारायण, है ना। तो उनको गॉड है, विष्णु तत्व बताया है। सेपरेटेड फॉर्म जो है लिविंग एंटिटीज जीवास है। कौन सा वर्स आपको याद आता है? मुझे भी नहीं आता, मैंने लिख के रखा है हरि बोल, तो इट्स फाइन अगर नहीं आता है। जीव भगवान का एक पार्ट है, कोई तो गुडनेस वाले बोलो। हाँ वेरी गुड, वाह। 15.7 में ये वर्स है, मम युवांशु जीव लोके जीव भूत सनातनः मनः शस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षति, है ना। तो भगवान के ही हम अंश है, इसीलिए क्वालिटेटिव वाइज सेम है, लेकिन हम विभु है, छोटा सा है, वेरी माइनर पार्टिकल जो माया के अंदर आके फंस जाते हैं। और हम अलग अलग वेराइटीज यहाँ पर देखे, और हम प्रकृति में आके कितने सेंसेस बताए यहाँ पर? मन, सृष्टियानि, इंद्रियाणि, 6। छठवा कौन सा है? 5 तो हमें पता है, माइंड है ना। तो यहाँ पर आके हम बहुत मेहनत करते हैं माया से छूटने के लिए, नहीं, टू लॉर्ड इट ओवर के लिए हम आए हैं। क्यों यहाँ पर? हाँ, क्या एंजॉय करने हैं? तकलीफें एंजॉय करने हैं, है ना। तो ये हमने यहाँ पर आए क्यों है? पहले तो अच्छा माता जी, आपके चरण का है माता जी। माता जी भगवान को प्राप्त करने के लिए आए हैं, है ना। लेकिन शास्त्र बोल रहे हैं कि हम आए हैं यहाँ पर भगवान बनने के लिए, सबसे सुंदर बनने के लिए, सबसे पावरफुल बनने के लिए, सबसे पैसे वाला बनने के, और सारे लोग मुझे ही प्यार करना चाहिए। क्या तुमने किसी से प्यार किया? है ना। तो ये एग्जाम्पल है यहाँ पर। तो ये हम सभी जीव का यही हाल है। तो हम यहाँ पर आए थे, और जब हम बोल रहे हैं ब्रह्मा जी भी है, क्या ब्रह्मा जी जीव है या विष्णु तत्व है या तत्व ही है ना। तो हम बन सकते हैं ब्रह्मा जी, जीव तत्व है, हम भी तो जीव तत्व है ना, तो हम भी बन सकते हैं, लेकिन बहुत ऑस्टेरिटीज और एकदम जीवों में से सबसे टॉप, एकदम प्योर। अभी तो हमारी हालत ऐसे है, तो ब्रह्मा जी बनना अभी नहीं है, लेकिन कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, सुना है। तो आप लोग सब लोग कोशिश कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी क्या है? पोस्ट है या क्या है? पोस्ट है ना। तो वो पोस्ट में हम लोग सब मेहनत करके पहुंच सकता है। क्या वही आपका गोल है? थैंक यू। कितने ऊंचे विचार के वक्त मेरे सामने बैठे हैं। मैं अब आगे कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। वहाँ मेरे प्रिय सत्य रूपा प्रभु बैठ के किसको मैसेज कर रहे हैं? प्रभु आप पैशन में है लगते हैं। मेरे सामने गुडनेस में बैठ के आप पैशन में क्या कर रहे हैं प्रभु जी? हम
है ना। तो आगे बढ़ते हैं। हर एक का एक एक ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि नहीं। भगवान कृष्ण कर रहे हैं डू योर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, तो वैसे प्रभु हमारे प्रिय ड्यूटी भी कर रहे हैं, है ना। तो जैसे हम ड्यूटी करते हुए भगवान कृष्ण को भी याद कर सकते हैं, तो हमारे प्रभु व्हाट्सएप में भगवान कृष्ण के जो गुणगान है उनके भक्तों को बोल रहे हैं, आओ सुनो देखो इधर क्या हो रहा है। ओके, बस प्रभु मुझे क्षमा कीजिएगा बाहर आके मुझे कुछ बोलना नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं देखा कोई माता जी सो रहे थे, तो ऐसा कुछ ना किसी का नाम लेंगे तो आजू बाजू वाला भी जाग जाते हैं। ओके, अब यहाँ पर है कि एंट्री हो रही है भगवान की मटेरियल वर्ल्ड में। अब बोलो कब होगा एंट्री हीरो का पिक्चर में? हमने तो बहुत पिक्चर देखा, सीरियल में हीरो का कब होती है एंट्री? हाँ, नहीं स्पेशली जब हीरोइन तकलीफ में होती है तब उसका हीरो कब है ना, तब वो हीरो आता है। तो यहाँ पर भी कब आता है भगवान कृष्ण यहाँ पर मटेरियल वर्ल्ड? अच्छा, कौन सा वर्स है वो? हाँ नहीं, मैंने पूछा कब आते हैं, उससे एक पहला वर्स है। हाँ, very good। ठीक है, तब भगवान कब आते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तब कब आता है? जब रिलीजन में डिक्लाइन होता है ना, और इररिलीजन जो है वो अधर्म जब बढ़ता है ना, तब भगवान आते हैं। अब भगवान आके क्या करते हैं वो है आप लोग ने पहले बताया, परित्राणाय साधूनां, है ना। वो आते हैं किसके लिए? वर्स है 4.8 भगवत गीता का, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, है ना। टू डिलीवर द पायस, वो अपने भक्तों को रक्षा करने के लिए, और जो उन्हें तंग करता है उन्हें निकालने के लिए, और धर्म का स्थापन फिर से करने के लिए। क्योंकि आए थे क्यों? क्योंकि धर्म कम हो रहा था ना, डिग्रेडिंग, तो देन दैट्स व्हाई ही कम्स। ठीक है, अब यहाँ पर है कि भगवान जो है भक्त को डिलीवर करने आया। हमारे भक्त कौन से गुण में फंसा हुआ है और कौन सी शक्ति के अंदर आया हुआ है? माया के शक्ति में, है ना। और हम जो है बज्जीव जो बोलते हैं, है ना, वी आर बॉडी है, सोल मतलब ऐसे थियरी में तो बताया है सोल है ना मतलब। लेकिन हम लोग ज्यादा सुबह उठ के सोल को देखते हैं, बॉडी को देखते हैं। हाँ, तो हम पहले बॉडी के लिए सब ठीक ठाक करते हैं, सोल तो अंदर है ना, उनको तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा रीड करता हूँ, भटक गया मैं। सच लिविंग एंटिटीज जो बज्जीव है ना, appear in this material world with the intention of, माता जी जैसे बोला है, नहीं माता जी का नाम लो, हम सब क्यों आए हैं? जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया था, टू लॉर्ड इट ओवर दी, है ना। हम आए थे भगवान बनने या कोई भी शक्तिशाली बनने के लिए, है ना, स्वामी बनने, प्रभु बनने, और आके हम कहाँ फंस गए? क्या बन गए हम स्वामी? नहीं, है ना। तो हम बहुत कोशिश करते हैं बनने के लिए और फिर हम थक जाते हैं, फिर हमें वो ब्रह्म जिज्ञासा आता है, हम आए क्यों थे, है ना। मनुष्य शरीर भी मिला, फ्लैशबैक में जाते हैं, मैंने यूं किया वो किया, और लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरे में और पशु में कोई फर्क ही नहीं है। मैं भी आया, पशु डिग्री ने किया, मैंने डिग्री किया, है ना, शादी किया। एनिमल्स तो बिना पढ़े ही शादी किया, है ना, बच्चे पैदा कर दिए, शादी तो नहीं, बच्चे पैदा किए, है ना, बच्चे हो गए और फिर बुढ़ापा आया और मृत्यु हो गया। वो तो एनिमल्स को तो बिना मेहनत किए भी हो जाता है। तो हमें भक्ति अगर नहीं किया तो हमें और पशु में कोई अंतर नहीं है। तो नेक्स्ट लाइफ में गारंटीड है क्या? पशु बनने, क्योंकि आपने यूज ही नहीं किया भक्ति, है कि नहीं। इसलिए यहाँ पर जोर दिया है कि भक्ति करो, है ना। अभी ये तीनों जो गुण के डिपार्टमेंट हेड है, उसमें हमें किसका भक्ति करना चाहिए? क्यों विष्णु जी का ही करना है? सतोगुण में है तो क्या हुआ माता जी? वैसे तो तीनों गुण है, अभी सतो में है तो 5 मिनट में हम गिर जाएंगे दूसरे गुण में। पैशन में प्रसादम का जैसे अनाउंसमेंट होगा, देखो किसका गुण क्या होता है। हाँ हाँ,
प्रसादम खाने के बाद सतोगुण में, उसके पहले कौन से गुण में होता है? प्रभु मुझे वो दीवार वाला कुछ चैर देना, थोड़ा फैल के बैठने तो प्रसादम खाना है, ये कौन सा गुण हुआ? है ना? तो ये होता है पैशन। ठीक है, रुको, मैं अभी कहाँ गुण में, मैं खुद ही गुण में फंस गया। रुको, तो 3 नेचर है, तो यहाँ पर सद्गुण इसके लिए बताया गया है क्योंकि भक्ति के लिए सद्गुण है ना, गुडनेस प्लेटफॉर्म है। हमारी गोल क्या है? गोल कहाँ पहुंचना है? गोलोक वृंदावन, है ना? वहां जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक में जाना है। तो क्या है वो चेंज चाहिए हमें? वी हैव टू ट्रांसेंड बोलते हैं, ट्रांसेंड। तो हमें ट्रांसेंड कैसे होगा? जब हम भक्ति करते हैं, है ना? तो लेकिन भक्ति अच्छी तरह करने के लिए आप वही चैंटिंग जो है ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हो, है ना? दोपहर को भी कर सकते हो, इवनिंग को भी कर सकते हो, लेकिन जिसने अच्छा जब कब होता है ना? या अर्ली मॉर्निंग, चलो ब्रह्म मुहूर्त भी नहीं, जब से हम उठते हैं ना, जो टाइम है, तो समय में भी हमारे जो है 3 गुणों का असर होता है, जिसमें हम भी एंट्रैप्ट होते हैं, है ना? तो इसलिए सद्गुण जो बताया है वो वेरी कंड्यूसिव बोलता है, वो ऐसे जब टाइम है वहां से हम लोग ट्रांसेंड या हम भगवान के ऊपर अच्छी तरह से फोकस और कंसंट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये जो हम जीव है, हम जो है 3 गुणों में फंसे हुए हैं, और एज सच लिविंग एंटिटीज जो जीव है ना, दे हैव टू चेंज द मटेरियल कवरिंग। और हम यहीं पे अगर है ब्रह्मा और शिव जी के, अगर हम प्रे करते रहेंगे, डिपेंड्स क्या आप प्रे कर रहे हैं आप, है ना? अगर कोई मटेरियल इच्छा है तो यहीं पे रहेंगे, या अगर हमें कृष्ण प्रेम के लिए प्रे कर रहे हैं तो हमें फिर चेंज द बॉडी, है ना? चेंज बॉडी मतलब हम यहीं पे रहेंगे तो दूसरा शरीर मिलेगा, जैसे मैंने बताया आपको, आपकी इच्छा के और डीड्स के हिसाब से, है ना? व्हाट इज योर अंत कालेचा माम है ना? भगवान का अगर आपने नाम याद किया, वो क्या रातों रात आ जाएंगे, या उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है ना? बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, जब भी हम लोग जाएंगे। ठीक है, आगे हम फिर से एक रिकैप है, प्रभुपाद ने दिया है ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जस्ट टू चेक कौन से पैशन है और क्या उन लोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मा जी जो है पैशन में है, गुडनेस में है, कहाँ पर है? ब्रह्मा जी पैशन में है और वो क्रिएशन करते हैं। ठीक है, विष्णु जी जो है गुडनेस में है, मेंटेन करते हैं, और शिव जी जो है तमो में है और डिस्ट्रक्शन करते हैं। डिस्ट्रक्शन उनका एक स्पेशल नृत्य बताया है इसमें, है ना? तांडव नृत्य, है ना? उससे वो डिस्ट्रक्शन करते हैं। अब डिस्ट्रक्शन में क्या होता है? तो डिस्ट्रक्शन में अगर यहाँ पर जो बताया है, पहला वाला यहाँ पर जो डिस्ट्रक्शन बताया है कि ब्रह्मा जी की जो डे टाइम में डे खत्म होने वाला है, तो वो डिस्ट्रक्शन में क्या होता है? जैसे मटेरियल वर्ल्ड के अंदर, है ना, और कितने प्लानिटरी सिस्टम्स हैं? आई मीन 14 है ना? लोअर, मिडिल एंड अपर, है ना? तो ब्रह्मा जी के जब एंड डे खत्म होता है तो ऊपर के सिर्फ 4 प्लैनेट्स रहते हैं और बाकी के सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कैसे? फायर आता है अनंत शेष के मुख से और पानी से वो पूरा फ्लडेड हो जाता है। तभी वहां का जीव को क्या होता है? हाँ, इट रिमेन्स डॉर्मेंट। जैसे हमारे लैपटॉप नहीं देखते हैं, सडनली अगर बैटरी नहीं होता वो अपने आप को बंद कर लेता है ना, फिर उसमें जब चार्ज करते हैं वो जहाँ थे वहां से आता है। तो उस तरफ से जीव जो है डॉर्मेंट स्टेज में रहता है। ठीक है, अब हम आते हैं, हमारे गोल क्या है? जैसे मैंने बताया था, मुक्ति, लिबरेशन। किससे मुक्ति पाना है? बीवी से या हस्बैंड से? साइकिल से? माता जी साइकिल से बोला था, मुझे याद आया, एक है, मैं बाद में बताऊंगा साइकिल का स्टोरी। तो हमें सिर्फ साइकिल नजर आया, सुनाई दिया माता जी। तो मैं समझता हूँ बर्थ, डेथ, ओल्ड एज और डिसीज का साइकिल से हमें छूटना है ना? और जैसे मैंने बताया, अंत काल में भगवान का नाम हमें लेना चाहिए। ठीक है, सो एनीवन देयरफॉर हु विश टू गेट आउट ऑफ दिस प्रिजन हाउस। किधर है प्रिजन हाउस? हाँ, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है प्रिजन हाउस है, लेकिन इतना अच्छा बंगला, इतना अच्छा शैंडिलियर, इतना, प्रभु ये क्यों प्रिजन हाउस बताया? प्रभु ये तो मस्त है, प्रिजन है, हमें तो इधर ही रहना है ना माता जी? ऐसा और एक विला होता तो हम यहीं पे रह लेते हैं, वो मुश्किल नहीं, हमें कुछ भी होगा प्रॉब्लम नहीं, है ना? हाँ, टेम्पररी है,
है ना। तो इसीलिए यहाँ पर जो बताया प्रिजन हाउस है, जो हम आए यहाँ पर फंस गए हैं। तो यहाँ से कैसे बचेंगे? गेट तो सामने ही है, कभी भी निकल के जा सकते हैं, साइकिल में जा सकते हैं, बाइक में जा सकते हैं, है ना, कोई भी चीज से लेके जा सकते हैं। लेकिन हमारे रियल जो सोल का है वो कैसे बचेंगे? वो तो साइकिल में भी नहीं बच सकते हैं, स्पिरिचुअल साइकिल होगा उनके। नहीं, तो उनको ये है कि एक जो जीव है भगवान को याद करना चाहिए, है ना। तो यही हमारी कोशिश है कि भक्ति करें, ये क्लास में आप लोग आए, भगवान के नाम सुने, है ना। तो इससे जो भी आप लोग मूड में हैं, देखो वो उठ जाता है, जैसे प्रभु का नाम ले, वो तमो से एकदम से वो आ जाता है गुडनेस में। नाम लेना मुझे बोला है नहीं है अपने एक प्रभु ने, तो मैं अभी थोड़ा सा और भी शुद्ध हो रहा हूँ, नहीं तो मैं नाम लेने में थोड़ा सा अभी झिझकता हूँ। सो एनीवन हु विशेस टू गेट आउट ऑफ दिस प्रिजन हाउस, जेल, है ना, और ये मटेरियल एग्जिस्टेंस विच इज फुल ऑफ मिजरीज। क्या क्या मिजरी है, जैसे माता जी ने बताया था, है ना। हाँ, है ना। तो अभी हम लोग के लिए, मेरे लिए स्पेशली अभी ओल्ड एज और मृत्यु सामने नजर आ रहे हैं। बर्थ के लिए तो बाद में देखा जाएगा, डिसीज भी नजदीक में है ना। तो हम समझते हैं जैसे 2 घंटा बैठने के बाद उठने के बाद हमें मालूम पड़ता है कि डिजीज और ओल्ड एज नजदीक में आया है, तो रियलाइजेशन देखो हमारे कितने अच्छे हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? वी मस्ट प्लीज लॉर्ड विष्णु। कैसे? भक्ति से, है ना, भक्ति माया और सेवा द्वारा हम ये संभव कर सकते हैं। 71266 100. Please remove your car immediately. ठीक है, तो यहाँ पर जो बताया है कि ये हम जो छह जीव है ना, ये 3 गुणों में है। ये कौन सा वर्ष है? या मैं बोल सकता हूँ ये माया की शक्ति से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, कौन सा वर्ष है भगवत गीता में? करेक्ट, वेरी गुड। 7.14 देवी हे एष गुणमयी मम माया दुरात्यय माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। तो ये जो एनर्जी है माया भी, जो भगवान की ही शक्ति है ना। उनका क्या रोल है माया देवी का? वो भी तो एक सेवा ही है ना, भगवान के लिए सेवा कर रहे हैं माया देवी। हम तो बोल रहे हैं कि हमेशा तकलीफ दे रहे हैं, हम तो बस वो ही देख रहे हैं ना। लेकिन माया देवी जो है हमारे टेस्ट ले रहे हैं, है ना। जो सच्चे भक्त हैं उनको ही पार करने देते हैं, है ना। और उनको कौन इंस्ट्रक्ट करता है माया देवी को? श्री कृष्ण, है ना। तो वही वर्स यहाँ पर बताया है, माया मेति तरन्ति ते। वो जाएंगे कैसे? मम माया प्रपद्यन्ते, है ना। जो भगवान के सरेंडर करते हैं, तो भगवान कृष्ण माया देवी को बोलता है ये मेरा भक्त है, इन्हें आने दो। आगे, एंड इफ एनीवन वांट्स टू कंटिन्यू प्रेजेंट लाइफ इन द मटेरियल वर्ल्ड, तो क्या करते हैं? हम तभी मांगते हैं भगवान को। कौन से भगवान को? शिव जी और ब्रह्मा जी को, कि मुझे थोड़ा सा अच्छा घर देना, है ना, अच्छा वाला गाड़ी देना। ज्यादा नहीं लालची हूँ, एक रोल्स रॉयस दे देना, ज्यादा नहीं चाहिए, एक बंगला चाहिए पाम आइलैंड में। थोड़ा थे तो बोल रहा हूँ, है ना, इतनी बड़ी यूनिवर्स में से एक बंगला मैंने पाम आइलैंड में, क्या वो भी इतना लालची थोड़ी होता है ना। तो ऐसे हमारी लिस्ट है ना, हम अपने आप को ही कंसोल करके छोटा छोटा जो इच्छाएं हैं हमारी पूरी करने दे देता है। फिर एक बार वो आ गए इतना विला में, पाम आइलैंड में, फिर हमारी भी तो होती है ना स्टेटस, कहाँ हम वो पुराना गाड़ी में जाए, तो उसके लिए एक रोल्स रॉयस भी तो चाहिए। फिर देखते हैं बाजू के घर में 5-6 मेड है, हमारे पास तो एक भी नहीं है, मैं खुद ही बैठ के कर रहा हूँ, तो और मेड चाहिए, है ना। तो ऐसे करते करते हम क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं इसमें ही, है ना। ओके, हम ऑलरेडी फंसे हुए हैं, और कितना फंसना है माता जी? तो नहीं फंसना है करके हम आ रहे हैं यहाँ सत्संग में, प्रोग्राम्स में, है ना। यहाँ आके भी अगर आप सो जाएंगे, खराटे लेंगे, हैं, एक आंख बंद है एक खुला है, एक तो दोनों आंख खोल के सो रहे हैं, तो मतलब प्रभु जी रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा है? बोला देख रहा हूँ प्रभु, चलो ठीक है ना। तो लेकिन माया देवी ये सब जानती है अंदर, और हमारे अंदर कौन सा विष्णु बैठा हुआ है? शिरोधका शाही विष्णु पहचानते हैं अंदर। वो तो देखता हूँ, माया से कॉन्टेक्ट करवाता हूँ, ठीक है। आगे, नो डेमीगॉड्स। चलो हमने शिव जी और ब्रह्मा जी से सब मांग लिए, प्रभु ने बोला, शिव जी ने बोला चलो फटाफट आपको दे दिए 5-6 मेड, रोल्स रॉयस और पाम में विला। फिर क्या होंगे हमारे? क्या वो हमारी रियल पर्पस है? रियल पर्पस इज टू लिबरेट, है ना। हमें भक्ति से हमें ज्ञान और वैराग्य होता है, लेकिन इतना बड़ा बंगला, गोल्ड, गाड़ी सब हो, क्या वैराग्य मिल जाएगा माता जी?
अभी नहीं, अगले लाइफ बोलेंगे हम, और एक चांस है ना। तो इसीलिए ये सच्चा जो है हमें जो ब्लेसिंग्स मिल रहा है वो सही नहीं है, क्योंकि देन वी बिकम मोर अटैच्ड, है ना। इसीलिए हमारे गोल जो है स्वर्गलोक नहीं है ना। स्वर्गलोक में तो कितना बेनिफिट है। हाँ, ऐसे कुछ वहाँ भरतनाट्यम के पोजेज आ रहे हैं मेरे को, तो मुझे लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही समय किया है। ठीक है, मैं भी 2 पोज देता हूँ प्रभु जी तक। ओके, समझ गया। तो हमारी जो रियल पर्पस क्या था, हमें वी वांट टू गो बैक टू गॉड है। तो ये जो है, जो ब्रह्मा जी है, शिव जी है, वो हमें नहीं प्रदान कर सकते, ओनली लॉर्ड विष्णु, है ना, वो ही हमें यहाँ से मुक्ति का जो है हमारी डिजायर जो है ही कैन फुलफिल। इसीलिए यहाँ पर ये जो वर्स जो तीनों गुणों में है, ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु में, विष्णु को पूजने कहा है, क्योंकि हमें जाना है बैक टू गॉड है, गोलोक वृंदावन, है ना। तो यही और हम कैसे जाएंगे उसका वर्स है भगवत गीता में 18.65। कौन सा है? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम ए वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजानाति प्रियसी में। तो हमें करना क्या है? हमेशा भगवान के बारे में सोचना है ना, भगवान के भक्त बनना है, भगवान को पूजा आरती करना है, और हम जो भी हमारे निजी जीवन में यूज करते हैं पहले भगवान को ऑफर करना है और फिर हमें यूज करना है। ऐसे करने से क्या होगा? भगवान बोलते हैं तुम मेरे पास आओगे, ठीक है। सो आई प्रॉमिस यू एंड बिकॉज यू आर अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड। ये भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, जो इंडीड वो हमें भी एक लेसन है, सीखना है और हमें भी हमारे जीवन में उतारना है। तो इसी के साथ भगवान हमें लेसन्स भी दिया है, गुरु, साधु और शास्त्र के हिसाब से हम पे कृपा किया है, और हम अगर ये फॉलो करेंगे तो हम जाएंगे कहाँ पर? गोलोक वृंदावन। सो आज का जो क्लास है मैं यहीं पे विराम करता हूँ। हरि बोल, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। किसी की कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, 2 मिनट का टाइम हो गया। टाइम देखो चालू है क्या? हाँ माता जी को तो ऐसे बोलो ना, माता जी ऐसे बोलो। अच्छा ओके। बोलिए जोर से बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ ऐसे बोलो प्रभु। नहीं, प्रभु ने बोला वहाँ भी ले। अच्छा आई विल रिपीट। यस प्रभु जी, बहुत ही अच्छे से आपने सब बताया प्रभु जी। और जिसमें मुझे थोड़ा एक प्रश्न ये है, जैसे ब्रह्मा जी को बताया गया कि जीव का सबसे बड़ा रैंक है जीव। हाँ। ये थोड़ा जो शिव जी हैं उनके बारे में, उनका कहाँ, मतलब वो जीव में आते हैं या फिर उनका स्थान कहाँ पर है, थोड़ा इसके बारे में। ये अच्छा प्रश्न है प्रभु। तो ये प्रश्न पूछा है, लेकिन शिव जी जो है जीव तत्व भी नहीं है और वो विष्णु तत्व भी नहीं है। ही समवेयर इन मिडिल। तो उसका ज़्यादा हमें अभी पता नहीं है मुझे कहाँ पर है, लेकिन वो हमारा गोल है ही नहीं। तो हमारा गोल जो है लिबरेशन है, तो हम विष्णु को ही जानते हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा ये नहीं पता है। लेकिन थोड़ा बहुत जो सृष्टि में बताया है वहाँ पर ये है कि जो कृष्ण भगवान है, पहले बलदेव जी जैसे एक्सपैंड हुआ, फिर बलदेव जी से जो आता है शिवा आता है, वो है सदाशिव जो महेश धाम में रहते हैं। वहाँ से फिर आता है जब सृष्टि होती है, भगवान का जो ग्लैंस होता है ना, वहाँ पर शंभु करके शिव जी है ना, जो हर लिविंग एंटिटीज को बॉर्न होते हैं, मतलब सृष्टि में जितने जीव हैं वो आते हैं। और उसके बाद ये जो डिस्ट्रक्शन वाला शिव जी है ना, वो है ब्रह्मा जी का। जब गुस्से होते हैं तो उनके आईब्रोज के बीच में जो रुद्रा आता है, तो वो रुद्रा है जो डिस्ट्रक्शन वाला शिव जी। लेकिन जीव तत्व भी नहीं है, वो विष्णु तत्व, उसका एग्जैक्ट नॉलेज मुझे नहीं है। अगर किसी को है तो वो बता सकते हैं, अगर नहीं तो वी कैन गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी प्रभु, ये है नहीं, मे बी इन पर्सन बाद में।
यस माता जी, आपको पूछना था कुछ? जी, जो ब्रह्मा जी और शिव जी की पूजा करते हैं उन्हें मेटलिस्टिक और पुलिश क्यों बोला जाता है? यस, तो यही मैंने पहले बताया था। तो आप कौन से गोल में थे माता जी? क्योंकि ये ऑलरेडी हो गया है, तो लाइव एग्जांपल माता जी ने खुद एक्सप्लेन किया। लेकिन ये है कि वो जो हम मांगते हैं वो हमारी इच्छा पूरी कर देती है ना? तो जैसे मैंने बताया था कि जैसे लॉटरी में नहीं होता, तो हम थोड़ा पैसे डालते हैं, तो अगर समझो 10 दिरहम्स मिल गया, है ना? फिर हमें और होता है कि यार 10 से क्या होगा, मैं और पैसे डालता हूँ तो मुझे और डबल मिलेगा। जुआ टाइप ऑफ गैम्बलिंग नहीं होता, तो जितने डालेंगे उसका डबल। तो पहले 10 डालेंगे तो मिल गया, तो हम बिलीव को हाँ सही मिलता है, तो और डालो जब। तो ऐसे हमारी जो है इच्छाएं हम लोग ब्रह्मा जी और शिव जी से पूछ के उसे इस लाइफ में हम एंटेंगल्ड हो जाएंगे। फिर हमें नहीं चाहिए भगवान के पास जाने के लिए। ऑफकोर्स वो शुरू शुरू में अच्छा लगता है, कोई भी नई चीज आती है ना? जैसे कि नई गाड़ी ली है तो एकदम अच्छा लगता है, सबको दिखा सकता है, सब बोलेंगे हाँ प्रभु अच्छी गाड़ी। लेकिन वही गाड़ी जब जाके किधर स्क्रैच पड़ जाता है, आपको दुख होता है। तो दैट इज नॉट अवर रियल बेनिफिट। अल्टीमेट गोल जो बताया ना था शुरू में क्वेश्चन में, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल, गुड फॉर द पीपल इन जनरल, भागवतम का जो मेन लक्ष्य है। तो कीपिंग दैट इन फोकस, द अल्टीमेट गोल अच्छा है कि हमें मुक्ति मिले यहाँ से, है ना? इस भौतिक जगत से निकल के हम आध्यात्मिक जगत में जाए। तो वो कौन करता है? ओनली लॉर्ड विष्णु करता है, वो ब्रह्मा जी और शिव जी हमें नहीं प्रदान कर सकते। इस तरफ से वो जो है, आप छोटे से खुशी के लिए यू आर ट्राइंग, सो उस तरफ से मूर्ख बताया, यू आर नॉट सीइंग द ब्रॉड पिक्चर, है ना? जो परमानेंट खुशी के लिए आप नहीं कोशिश करते। विष्णु जी का जो है परमानेंट हैप्पीनेस है, वो जो है टेम्पररी हैप्पीनेस, यही इसीलिए मूर्ख बता गया। ओके माता, हरे कृष्ण। और किसी को कुछ प्रश्न है? नहीं है तो हम लोग फिर प्रसादम के लिए आगे बढ़ते हैं। मैं पैशन नहीं चेक करूंगा, मैं आपसे सबसे पहले नंबर में होऊंगा पैशन में। तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। बहुत सीताला हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच ब्रो। आप उधर रुकना।